السلام علیکم آغا صاحب، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ آغا صاحب آج طب نبی کے سیگمنٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم انڈے پر بات کر رہے ہیں۔ انڈے کے بارے میں ایک جو دیا گیا ہے ریفرنس، وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے انڈے کو قوت کے لیے پسند کیا، انرجی لیول کو بہتر کرنے کے لیے۔ اب پروٹین ہے اس کے اندر یقیناً البومن ہے، لیکن اب جو میں اپنی روایتوں کی بات کرتا ہوں پھر آپ یہ دیکھیے کہ انڈا عام طور پہ جو ابلا ہوا استعمال کرتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں آج۔ وہ یہ کہ ہم انڈے میں ایک روایت کیا ڈالیں گے، انڈے میں ابلے ہوئے انڈے میں کیا ڈالیں گے؟ نمک، کالی مرچ اگر ڈالنا ہو تو نمک، کالی مرچ۔ تو نمک یہ اگر ہم ڈالیں گے اس میں تو یہ فار دا ٹیسٹ ہوگا اور یہ اس کے اندر بہت کم مقدار میں موجود ہوگا۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کالے مرچ۔ کالے مرچ کیوں ڈالیں گے؟ ہاں بس مجھے تو لگتا ہے ٹیسٹ کے لیے ڈال کھاتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے نہیں، ایبزارپشن بھی بہتر ہوگا، میٹابولزم فاسٹ کرنے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، اپنی رائے ہوگی نا، میری ایک رائے اور ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر زردی میں پروٹین ہوتا ہے اور کالے مرچ جو ہے یہ پروٹین کو ہضم کرنے کے لیے اور کولیسٹرول کے لیے اینٹی کولیسٹرول میڈیسن ہے، اس لیے ہم اس میں کالے مرچ ڈالتے ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہم سائنس سے جو چیزیں ثابت کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ یہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے بڑے ہمیں پہلے سے سکھاتے رہے ہیں ہر چیز کے پیچھے۔ جی آغا صاحب، ایک سوال یہ کہ آپ نے ایگ یولک کا، زردی کا کہا کہ اس میں پروٹین ہوتا ہے، تو ایگ وائٹ میں بھی بہت پروٹین ہے، جو وائٹ ہے وہ تو ساری ہے ہی پروٹین، اور وہ جو یولک ہے اس میں بھی اور بھی بہت سے فوائد ہیں نا، بہت سارے فوائد ہیں، اس کے اندر مختلف وائٹامنز ہیں اور یہ ایک کمپلیٹ میل ہے۔ ویری نائس، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس لیے میں صرف یہ بات وضاحت کرنے کے لیے آج میں نے اس کا انتخاب کیا کہ جو کالی مرچ ہے یہ اینٹی کولیسٹرول ہے اور اس اینٹی کولیسٹرول کو انڈے میں ڈالنا فائدہ مند ہے، چاہے آپ فرائیڈ انڈے میں ڈالیں، ہاف فرائیڈ میں ڈالیں۔ اور میں سوچی تھی آغا صاحب کہ اگر آپ لوگ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں تو صبح سحری میں اگر صرف 2 ابلے ہوئے انڈے کھا لیں تو کیا یہ آپ کا پورا روزہ جو ہے وہ سکون سے گزر جائے گا؟ اتنا فلفلنگ ویسے ہوگا یہ؟ دیکھیے چلو 3 کھا لیے، 2 چیزوں سے الگ الگ کر لیجیے۔ اچھا، ہم دنیا میں کوئی بھی چیز کھا لیں 3.5 گھنٹے کے بعد ہمارا معدہ خالی ہو جائے گا، اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اب جو کچھ آپ نے کھایا ہے اس سے جو آپ نے انرجی اپنی بوسٹ کی ہے وہ انرجی آپ کے کام کی ہے، جو کیلوری شارٹس ملی آپ کو، جو کیلوری شارٹس۔ تو اب آپ 2 انڈوں کا انتخاب کریں، 3 انڈوں کا انتخاب کریں یا آملیٹ کا۔ اچھا، آملیٹ کی ایک چھوٹی سی ترکیب میں چاہوں گا کہ بڑے ماشاءاللہ یہاں پر شیف موجود ہیں، لیکن آپ کی اجازت سے ہو تو کچھ کر دیں۔ صاحب آپ خود اتنے بڑے اور آپ کو پتہ ہے ایسن کو بھی انڈا بنانا آتا ہے، آپ ایزی نہیں آج آپ نے لینا۔ آج ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ بنا رہے تھے، تو میں نے بہت سوچنے کے بعد اس کا جواب آیا کہ انڈا، اور وہ انڈا بھی جو اسکرامبلڈ ایگ ہوتا ہے یوزولی۔ السلام علیکم۔ اچھا آغا صاحب، کیونکہ ہم کھانے پینے کی بات کریں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آغا صاحب ایک مدیہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا کہ جو رات کے سحری کے وقت، کیونکہ میں یوزولی سحری میں انڈا کھاتا ہوں، مجھے پسند کہ سحری میں ایگ کھا لوں، مجھے سالن اور وہ دوسری چیزوں کا ابلا ہوا سے کھاتے ہیں، ابلا ہوا بھی یا اسکرامبلڈ جیسے ہم بناتے ہیں، لیکن وہ بھی میں کوکونٹ آئل یا اولیو آئل میں۔ ایک سوال میرے دل کے قریب، کیا پراٹھے کے ساتھ کھاتے ہیں آپ؟ چپتا پراٹھا ضرور ہوں، لیکن آج کل ذرا کنٹرول ہے اور پھر بعد میں سوچتا ہوں پورا کیوں نہیں کھایا۔ صبر کی منزلت پہ یہ پراٹھا چھوڑ دیا، ایک پنجابی نے اگر پراٹھا چھوڑ دیا آپ اس کی قربانی کو بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ نہیں، پھر مدیہ پراٹھا چھوڑنے کے بعد پھر یہ حال ہوتا ہے، پھر میں نہیں پراٹھا کھاتی بالکل۔ بس آپ چاہتی میں آپ کی تعریف کروں کہ نہیں آپ پراٹھے پہ میں کبھی اس کی انرجی پہ بات کروں گا۔ آج درخواست یہ کرنی ہے کہ انڈا، اگر انڈا آپ آملیٹ کھا رہے ہیں تو ایک ہمیشہ یاد رکھیے، انڈے میں عام طور پہ آملیٹ بنانے کے لیے ہم پیاز کا اضافہ کرتے ہیں، کبھی ہری مرچ ڈالتے ہیں، کبھی کچھ اور شملہ مرچ ڈالتے ہیں۔ اگر انڈے کو پھینکتے وقت اس میں 4 چمچے دودھ یا 4 چمچے پانی ایڈ کر لیں تو ہمیشہ انڈا بہت اچھا پکے، فلفی، ذرا پھول جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ وہ دودھ سے یا پانی سے پھول جاتا ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے، یہ دیکھیں پھولتا ہے، یہ دیکھیں یار آڈینس تالی بجائے، وہ بھی گھر میں یہی کرتی ہیں خواتین، گھر میں پانی ڈالتی ہیں انڈے میں۔ کیا ڈالتی ہوں؟ اونچا بولیں۔ پانی۔ اب یہ دیکھیں اچھا دیکھیے کیوں ڈالتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انڈے کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ 1.5 منٹ ہے، اگر ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں تو انڈے کا کوکنگ ٹائم 4 منٹ ہو جاتا ہے، جبکہ پیاز جو ہے اس کا کوکنگ ٹائم 4 منٹ ہے۔ اس ٹائم کو ایکول کرنے کے لیے آپ پانی ڈالیں گے، اگر آپ پانی ڈالیں گے تو اس کی ایکویلٹی برابر ہو جائے گی، ادروائز یا انڈا پک جائے گا یا پیاز کچی رہ جائے گی، پیاز پک جائے گی تو انڈا کچا۔ یہ بڑی اعلیٰ بات کر دیا۔ آغا صاحب کے لیے تالیاں بجائیں، آغا صاحب کے لیے۔
वैसे वाकई अच्छा, आज अंडे के हवाले से बात करें तो एक तो मैं बात करूंगा बच्चों को जो लूज़ मोशन हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स उनके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो एक कोई ऐसी दवा जो वक्ती तौर पर घर में इस्तेमाल कर लिया, जब तक रात को डॉक्टर नहीं मिलता आपको उस वक्त तक कुछ कर लिया जाए। तो उस वक्त मैं रेसिपी बनाऊँगा। उस रेसिपी में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 अंडे की सफ़ेदी है, ये अंडे की सफ़ेदी मेरे पास मौजूद है, और इसके साथ मैं डालूँगा पानी और शक्कर, सिंपल सफ़ेद शक्कर। अंडे की सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी, पानी और सफ़ेद शक्कर, और ये इसे ब्लेंड करेंगे। इसको सिर्फ ब्लेंड करेंगे। और पानी अगर बहुत यानी अच्छा वाला पानी हो, जो मिनरल वाटर हो, तो ज़्यादा अच्छा है। कॉलर आगा साहब, एक कॉलर ले लें आपकी इजाज़त से। जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें जी? सबा साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एहसन भाई कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। जी क्या आप आगा साहब से कुछ पूछना चाहती हैं? जी मैं आपसे अंडे की पूछना रेसिपी? चाह रही हूँ। जी, नहीं अंडे से रेलेवेंट तो नहीं कुछ पूछना अच्छा चाह फिर रही क्या थी। क्या पूछेंगे आप? जी मैं मदिया, गले से मुतालिक पूछना चाह रही थी। गले का तो ये पूरे सेट पे मसला है। सभी भाई बोल रहे हैं गला सही नहीं है। नाजिया, मदिया, सबा है। अच्छा, हाँ। जी सबा बताएं, क्या आपको क्या गले का इशू है? क्या मेरे जैसे कोई गले का इशू है? नहीं, मदिया जैसी या नाजिया जैसा? मुझे आप दोनों से बहुत अच्छे से ये गले का मसला चल रहा है, आप लोगों से ज्यादा मेरे ख्याल में होगा। ठीक है, पूछिए। मेरे ना गले में मसला ये है कि मुझे एक तो रेशे का मसला है। मेरा रेशा फुल ईयर मुझे गिरता रहता है मेरे गले के अंदर, ठीक है। और दूसरा मसला ये है कि समटाइम मेरी जबान बिल्कुल ड्राई हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती क्यों है। मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया है इस प्रॉब्लम को क्योर के लिए, लेकिन अभी तक मुझे कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट हो रहा। तो क्या आगे जी अगर मुझे कुछ ऐसा बता दें जिससे ये मेरा मसला खत्म हो सके, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शायद स्टमक का इशू है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, और कुछ कहते हैं शायद आपकी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। तो अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ, बुनियादी तौर पर खांसी का मसला, गले का मसला 3 मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है। पहले मैदे की तेज़ाबियत की वजह से, नंबर 2 मुंह से कोई हलक में अगर कोई वायरस चला जाए तो, लेकिन नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट नज़ल ड्रिपिंग। जिन लोगों को साइनोसाइटिस का पुराना मसला होता है, उनका नज़ला अंदर गिर रहा होता है, और ये पोस्ट नज़ल ड्रिपिंग जो है ये गले को हमेशा ख़राब करती है। जिन लोगों को गले का इलाज करना है वो पहले अपनी नाक का इलाज करें। नाक का इलाज के लिए बहुत आसान सी बात है, वो ये कि नीम गर्म पानी में नमक मिला लें, पिंक सॉल्ट मिलाकर बहुत अच्छी तरह रखें, उसको मलमल के कपड़े से छान लें ताकि कोई इम्प्योरिटी ना हो, और उस नमकीन पानी से नाक को इस तरह साफ़ करें जैसे हम वुज़ू में साफ़ करते हैं। रोज़ाना रात को नाक साफ़ करें और गरारे करके उसी पानी से सोने की आदत डाल लें। आप यकीन कीजिए 1 हफ्ते के बाद आपको लगेगा क्या गला बात आपका है। ठीक हो गया। जी एक जानान की जानिब से आगा साहब मैं चाहता हूँ अपने हाथ से हमारी ऑडियंस में गिफ्ट दें प्लीज़। आइए ऑडियंस में गिफ्ट दे दिए। ये जानान ने पहले भी आपास के जो स्कार्फ्स हैं वो दिए हैं। प्लीज़ ऑडियंस में से किसी को भी जिसका आपका दिल करते, तालियां बजाइए आगा साहब के लिए। सबसे जी मदिया कॉल लीजिए आप जी प्लीज़। अच्छा, हमारे साथ इसका कॉलर भी मौजूद है, आमिर नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा कैमरा जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। वालेकुम सलाम। मोहम्मद आमिर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है? बस ठीक ठाक है माशाल्लाह, बहुत अच्छी नशियात चल रही है। आप है जबरदस्त। साहब हैं, तो ये कि मेरा सवाल भी था आगा साहब से। जी मेरा सवाल ये है कि एक अगर बंदा है जिसका मेहनत कश का काम है, एक्टिविटीज उसकी ज़्यादा दिन भर की, तो ऐसी क्या डाइट ले अफ्तार सहर में कि उसकी तवानाई बरकरार रहे पूरा दिन? सारा दिन तवानाई बरकरार रखने के लिए बेटा जो इंतखाब आप करते हैं सहरी के खाने का, वो उस इंतखाब को कंपैरेटिवली बेहतर कर लीजिए, तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। अभी हमने यही बात जिक्र की कि मैदा खाली हो जाएगा लेकिन उसकी एनर्जी आपके काम आएगी। तो वो तमाम चीज़ें, जैसे सर ने कहा कि मैं अंडा खाता हूँ, अंडे की एनर्जी जो है वो खासी ज़्यादा है। एक जो मुनासिब सा अंडा होता है उसमें 75 कैलोरीज होती हैं, और आगे साहब वापस की बात है, एक अंडे से गुजारा नहीं होगा। मैं एक अंडे की बात नहीं मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल कि ओवर वो हंस रहे हैं सब मेरे पे। नहीं वाकई नहीं आप मुझे बताएं, एक अंडा हमारे जैसे मेरे जैसे इंसान के लिए एक अंडा तो कम से कम 3-4 मैंने कहा 75 कैलोरीज होती है। मैंने इसलिए लेकिन महंगा कितना हो गया अंडा? कितने का हो गया अंडा? एक नंबर ये देखें 35 रुपीस का अंडा मिल रहा है। सर अल्लाह ताला प्रेशस हो गया अंडा। ये तमाम 90 चीज़ें रुपए का हो जो गया है ना, फिर भी अपनी एनर्जी के लिहाज से तमाम चीज़ें
कम कीमत के लिहाज से भी जो लोग कम हैसियत रखते हैं वो लोग भी इस्तेमाल कर तो आप जो जिन भाई ने मैं फ़ोन किया आप उनको ये रेकमेंड करें वो अंडा खाया करें? बिल्कुल खाएं जी, एक नहीं 2 अंडे कम से कम खाएं, और अगर आपका जुस्सा एहसन से ज़्यादा अच्छा है तो 3 अच्छा, और एक मेरा ज़ाती सवाल है, वैसे लोग अक्सर कहते हैं नहीं भी एग योक नहीं खाना, आम लोग भी, या तो कोई बीमारी, वो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये हो जाता है, एक आधा अंडा भी नहीं खाते, हाथ नहीं लगाते, नहीं ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत तस्वुर है। ये देखा, मैं यही बोलता हूँ सबको। ये आखिरी जो रिसर्च आ रही हैं जी, उसमें ये बात तय हो गई कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उन्हें कम से कम हफ्ते में 8 अंडे खाने चाहिए। 8 अंडे? यस, जर्दी? 8 अंडे, जर्दी समेत। जर्दी समेत। आगा साहब की तालियां बजाएं इस बात पे। और ये लें, और गिफ्ट लें। किसको नहीं मिला? ये लीजिए, ये लीजिए। अच्छा, लेकिन जिनका फैटी लिवर होता है उनको तो नहीं खाना चाहिए ना? देखिए, फैटी लिवर की बात अगर करूं तो आपसे सच कहूं, तालियां फैटी बजेगी तो लिवर तो आएगा। हम खुद लेकर आगा साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये लीजिए। फैटी लिवर? ये फैटी लीजिए। लिवर तो हमारे अपने अमाल की सजा है। क्यों? चलिए अब फ्राइड फूड खाने के हाँ, लिए। फ्राइड नहीं सर, देखिए Inherited भी तो पाकिस्तान होता में है। 3 बड़ी इंपोर्ट्स का नाम लीजिए, पेट्रोल, जी, मोबाइल टेलीफोन जी, जी। और पाम ऑयल। ठीक है। कहीं किसी ने पाम ऑयल बिकते हुए देखा पाकिस्तान में? ये पाम ऑयल कहाँ जाता है? ये सब ब्लेंड होता है हमारे यहाँ जो ब्रांडेड ऑयल्स हैं आम तौर पर उसमें, और ये पाम ऑयल इसकी जो पढ़ेंगे आप जाके It's गूगल the में तो worst. आपको अंदाजा होगा कि ये फैटी लिवर भी पैदा करता है, लिवर के मसाइल भी पैदा और भी करता बीमारी है, है। बिल्कुल पाम ऑयल से बिल्कुल। जान छुड़ाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है आगा चलो। साहब, अच्छा क्या सर, बात। मैं दूसरी एक रेसिपी, अंडे का तेल है। अच्छा, अंडे का तेल बनाने निकालने का तरीका ये है कि 12 अंडे ले लें, पहले उसको बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद उसकी जर्दियाँ अलग कर लें, सिर्फ जर्दियों को तवे पर रखें, हल्के हल्के उसको जलाते रहें। जब अंडे की जर्दियाँ जल जाएंगी, जो तेल हासिल होगा वो अंडे का खालिस। जैसे हम देसी घी निकालते हैं उससे मलाई से, मलाई। बिल्कुल उस तरीके से बिल्कुल निकालना है। हाँ, ये तेल इंतहाई फ़ायदेमंद है उन बच्चों के लिए जिनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए सिर्फ एक कतरा किसी भी तरह उस बच्चे को पिला दीजिए। बहुत कड़वा होता है और बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल होता है। दूध में डाल दें या खाने में, पानी में डाल दें, किसी भी तरह दे दें, जो खिचड़ी बच्चा खा रहा है उसमें दे दें, उसमें दे दें, 1 चमचे में डाल के दे दें। और बाकी जो तेल है इससे 7-8 कतरे लेकर इसी तरह सीने पर, ख़ास तौर पे दोनों साइडों में पसलियों पर हम लगा दें। उसकी वजह यह है कि बच्चे को अगर खांसी हो रही है या छींकें आ रही हैं तो बच्चा लेबरिंग कर करके उसके ये मसल्स थक जाते हैं, खिंच जाते हैं। इन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अगर अंडे का तेल लगाया जाए तो ये बेहतरीन दवा है और बच्चा जो है बड़ी हद तक रिलैक्स हो जाएगा, उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। ठीक है, एक क्विक क्वेश्चन, जो ये आजकल अक्सर कच्चा अंडा दूध में डाल के लोग शेक करके, लाइक बॉयज यूजुअली बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करते हैं, कच्चा अंडा पी लेते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, बात यह है कि कल परसों भी ये बात हो रही थी कि जो जवान लड़के हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो ये प्रोटीन ले रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी दरख्वास्त, तभी मैं कहूँ मुझे इतनी प्रोटीन की क्यों जरूरत पड़ती है। मैं नहीं, लेकिन वैसे ना ऐसे अच्छा, फिर तालियां बजाइए, लो और आ गया। ये तालियों की जगह ऐसे में आवाम की ना वैसे सही लफ्ज़ से आते हैं, लेकिन हाँ जी, ऐसे बताइए। आपने तो जो बताया कि लड़के जो जिम करते हैं वो फोर्टाइल जी। लेकिन बच्चों को भी लोग कहते हैं कि जी आप बच्चों के दूध में भी ना जो आप अंडा मिक्स करके उनको दे दें, देखिए, तो क्या सही होता है? प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन लाइफ के लिए हैवी ज़रूरी नहीं है। हो जाता होगा छोटे बच्चों के प्रोटीन- लिए? अच्छा, अगर फैट हम दे रहे हैं तो अच्छा होगा, कार्बोहाइड्रेट दें तो अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर अंडा दे दें। हमारे सारे मसल्स ही प्रोटीन से लेकिन- बनते हैं ना। लेकिन मैं सब- फोर्टाइल लो। एक क्या भी दफा fertile आगा के साहब, रिकॉर्ड मैं तो समझ रहा था आपके लिए तालियां बज रही हैं, लेकिन ये तालियां तो गिफ्ट्स के लिए बज रही हैं। भाई आगा साहब के लिए बजाएं आप तालियां। चाहिए। ये एक क्यों पड़ा हुआ है? मदिया आप देना है जाके, प्लीज किसी को दे दें। मैं सिर्फ एक चीज़ दरख्वास्त मदिया के लिए तालियां बजाएं पहले। हाँ, पहले कि लेकिन पहले मैं देखूंगी कि सबसे ज्यादा कौन जो है ना अच्छे तरीके से ताली बजा रहा है। जो ज्यादा जोर से बजाएगा। ये तो मेरी बेटी को मिल गया। मैं ये जनाब आपके लिए। चलो जी, वेरी नाइस, वेरी चलो नाइस। जी, जज़ाकल्लाह भी। अभी हमारे पास एक गिफ्ट बाकी, वो बाद में देंगे ब्रेक से आके। ये जी, पैगाम तो चला गया कि जी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसी प्रॉब्लम को, इस मैसेज को हम गलत तौर पे यूज़ करते हैं, प्रोटीन शेक्स पिलाते हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड मौजूद होते हैं और अमाइनोज मौजूद होते हैं। लोगों को, मैं बच्चों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा तभी कि तो कार्डियक एक्सरसाइज अरेस्ट ज़रूर ज़्यादा आते कीजिए, हैं। लेकिन प्रोटीन शेक से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप घर में जो है वो ये रोज़ाना वाला जो कीमा आपने कहा खाइए, वो अंडे बिल्कुल खाइए सही, रोज़ाना। बहुत अच्छी बात है जी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान का समा।